Good morning, everyone. In today's lecture, we are going to discuss ideal and non-ideal solutions. Any solution having two components will be said to be ideal if it obeys Raoult's law. That means ideality or non-ideality of solutions जो है that depends on Raoult's law. If a solution obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration, then the solution will be said to be an ideal solution. और राउल्ट्स लॉ की जैसे कि हम स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है that the partial pressure of any component in the solution will be equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied with its pressure in its pure form. Accordingly, for the component A, PA will be equal to XA into P naught A and PB will be equal to XB into P naught B for component B, where PA and PB are the partial pressures of component A and B in the solution respectively. XA and XB are their corresponding mole fractions, and P naught A and P naught B are the pressures of component A and B in their pure state. अब क्या होता है, कई बार हम आइडियलिटी को इंटरेक्शंस के टर्म्स में भी ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर सॉल्यूशन इज मेड विद टू कंपोनेंट्स A and B, then definitely there will be some interactions between the A molecules, and also separately there will be interactions in the B molecule when they are in their pure form. But when we mix A as well as B, that means when A and B are mixed together, then what will happen? The B molecules will interfere with the interactions of A molecules. That means B will interfere with A interactions. In the same way, the component A will interfere with the B interactions, and some new interactions, that is between the molecule A and B, are observed. That means A interactions were present in pure A, B type of interactions were present in component B pure form in its pure form, and when we mix A and B, then a new type of interactions, that is AB type of interactions, are observed. And if the AA BB interactions are of the same magnitude, and accordingly the AB interactions are also of the same magnitude as AA and BB interactions, then the solution will be said to be an ideal solution. That means if AA interaction is equal to BB interaction and that is equal to AB type of interactions, then only the solution will be an ideal solution. That means the interactions are almost of the same magnitude. Further, it has been observed for a solution mixing the two liquids that it will be ideal if there is no volume change on mixing. That means delta V mixing is equal to 0, and there is no enthalpy change on mixing. That means delta H mixing is 0. These are the two essential conditions for solutions ideality. A volume change on mixing is 0. That means कि जब हमारे पास प्योर A था और प्योर B था, let us consider that we have taken 50 ml of pure A and 50 ml of pure B, and we just mixed the two, and after mixing, if we get total 100 ml solution, then what we may say? We can say that the AA interactions, BB interactions are equal to AB interactions. That means
जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास बिफोर मिक्सिंग था 50 + 50, दैट मीन्स 50 ml of A and 50 ml of B, that means total 100 ml. And after mixing we observed exactly 100 ml of the solution, that means there is no volume change on mixing. But sometimes it is observed that if we take 50 ml of A and 50 ml of B and mix the two, then instead of getting exact 100 ml of the solution, sometimes we observed 99 ml of solution. Also it may happen that we may get 101 ml of solution. What does it mean? It means the solution formed is not an ideal solution. इस चीज़ के लिए हम एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली 100 ml सॉल्यूशन मिलने की बजाय वी गेट 99 ml और 101 ml ऑफ सॉल्यूशन. इट्स एक्सप्लेनेशन विल ऑल्सो बी गिवन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस. वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर A अपनी प्योर फॉर्म में है देन इट इज़ हैविंग A टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. अगर B अपनी प्योर फॉर्म में है देन इट इज़ हैविंग B टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. एंड व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड टुगेदर देन A-B type of interactions are observed there. If these A-B type of interactions are somewhat stronger than A-A and B-B interactions, then there will be a contraction. कि अगर strong interactions हैं उनके बीच में तो molecules और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे तो वो कम volume occupy करेंगे. And in this case we will get, instead of exactly 100 ml solution we may get 99 ml of solution. That means हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग आ गया. क्यों यहाँ पर वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग इज नॉट ज़ीरो बिकॉज इंस्टेड ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 100 ml we get 99 ml due to strong interactions. A-B type of interactions were stronger than A-A and B-B type of interactions. That is why this solution will not be ideal. इसके अपोजिट हमारे पास ये भी हो सकता है कि जब हमने A और B को मिक्स किया then A-B type of interactions will be somewhat weaker than A-A and B-B type of interactions. What will happen in that case? कि अगर A-B interactions weak हैं as compared to the A-A and B-B interactions, then the liquid will expand somewhat. And instead of getting exactly 100 ml solution, we may get 101 ml of solution. In that case also, the solution will not be said to be an ideal solution and it will be a non-ideal solution because here also delta V mixing is not found to be 0. On the other hand, यहाँ पर हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम तब भी बोल सकते हैं जब हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो ना हो. तो आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास एसेंशियल कंडीशन है दैट इज़ द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो एंड एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग शुड ऑल्सो बी ज़ीरो. इफ़ डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो and delta H mixing is not equal to 0, in that case the solution will be called a non-ideal solution, or we can also say it will be a real solution. तो हमारे पास कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास हैं वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक which we are going to discuss in this lecture is thermodynamic properties of ideal solution. हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए. तो उसके लिए हमें एक आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा. लेट अस से द आइडियल सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम टू liquids, that is A and B, and for making an ideal solution, let us consider that N1 moles of A and N2 moles of B are mixed together to form the solution. अब इस
आइडियल सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू डिस्कस 4 thermodynamic properties. The first one is the free energy change on mixing. Second one is the volume change on mixing. Third one is the enthalpy change on mixing. And the last one is the entropy change on mixing. First of all, we are going to discuss the free energy change on mixing. And using this free energy change of mixing, we can find out the volume change on mixing, enthalpy change on mixing, and also the entropy change on mixing. Let us consider the first property, that is the free energy change on mixing. The free energy change on mixing the pure components 1 and 2 will be given by, कैसे देंगे हम कि हमें फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी है उसमें से प्योर कंपोनेंट्स की फ्री एनर्जी को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग. तो नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेशन, वहाँ देखो, डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी इक्वल टू टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स. अब फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को हमने नाम दे दिया जी सॉल्यूशन, और जो प्योर कंपोनेंट्स की फ्री एनर्जी है उसको हमने बोल दिया जी ऑफ प्योर कंपोनेंट्स. अब देखो, लेट अस कंसीडर दैट इफ G1 इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन एंड G2 इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ द कंपोनेंट 2 इन द सॉल्यूशन, देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू N1, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, जो हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, तो N1 इंटू G1, बिकॉज G1 इज़ द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट. Similarly, G2 is the free energy per mole for the second component. Therefore, free energy of solution will be N1 into G1 plus N2 into G2, because यही दोनों components मिलके हमारा ideal solution बना रहे हैं. Further, हम ये भी मान लेते हैं that if G1 bar is the free energy per mole of the pure component 1 and G2 bar is the free energy per mole of the pure component 2, कि पहले वाली तो हमने ली थी फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट की सॉल्यूशन के अंदर फ्री एनर्जी. अब हमने क्या कहा, दैट G1 बार इज़ द फ्री एनर्जी पर मोल फॉर प्योर A एंड G2 बार इज़ द फ्री एनर्जी पर मोल फॉर प्योर B. तो अब यहाँ से हमारे पास G ऑफ प्योर कंपोनेंट्स आ जाएगी, यानी कि टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स, and that will be equal to N1 into G1 bar plus N2 into G2 bar. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से जो हमने G ऑफ सॉल्यूशन एंड G ऑफ प्योर कंपोनेंट्स निकाला है उसको उठा करके अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. फ्रॉम हेयर वी विल बी हैविंग डेल्टा G मिक्सिंग इज इक्वल टू N1 into G1 minus G1 bar प्लस N2 इंटू G2 माइनस G2 बार. अब यहाँ से फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ एनी कंपोनेंट जो है वो हम दे सकते हैं यूजिंग द रिलेशन. ये रिलेशन हमारी आई है थर्मोडायनेमिक्स से, और ये रिलेशन हमें क्या कहती है, दैट द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज गिवन बाय G इज इक्वल टू G नोट प्लस RT ln A, वेयर this G naught is the free energy of the pure component. Pure component in its standard state. और A जो है, A represents the activity of that component in the solution, यानी कि activity means the effective concentration for that component in the solution. अब यहाँ से अगर हम इसी इक्वेशन को फर्स्ट कंपोनेंट के लिए और सेकंड कंपोनेंट के लिए लिखें, सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट के लिए लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से G1 इज इक्वल टू G1 नॉट प्लस RT ln A1.
जहाँ पर जो G1 है वो हमारे पास हो गया फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ कंपोनेंट 1 इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। अब दूसरा हम क्या मानते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट या मोर जनरली अगर हम कहें कोई लिक्विड, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए दो लिक्विड्स को ले रहे हैं, तो हम कहें कि अगर G0 से हम ये फ्री एनर्जी पर मोल इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट किसी भी लिक्विड की जो जनरली हम लेते हैं दैट इज़ इन इट्स प्योर स्टेट। किसी भी सॉलिड के लिए या किसी भी लिक्विड के लिए तो हम कहते हैं व्हेन द कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन इट्स प्योर स्टेट इट इज़ द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दैट लिक्विड और दैट सॉलिड। तो यहाँ से क्योंकि ऊपर हमने माना हुआ है G1 बार इज़ द फ्री एनर्जी पर मोल फॉर प्योर A एंड G2 बार इज़ द फ्री एनर्जी पर मोल फॉर प्योर B, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट दिस G1 बार इज इक्वल टू G1 नॉट। अब इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई अब फर्स्ट कंपोनेंट के लिए वो बन गई G1 इज इक्वल टू G1 बार प्लस RT ln A1। इसी तरीके से हम सेकेंड कंपोनेंट के लिए भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए यही इक्वेशन बन जाएगी G2 इज इक्वल टू G2 बार प्लस RT ln A2। अब इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो G1 बार को उधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में और G2 बार को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो हमारे पास यहाँ से आ गया G1 माइनस G1 बार इज इक्वल टू RT ln A1 एंड G2 माइनस G2 बार इज इक्वल टू RT ln A2। इन दोनों इक्वेशंस को उठा के और जो हमने ऊपर डेल्टा G मिक्सिंग वाली रिलेशन लिखी थी वहाँ पर पुट कर दो। उस इक्वेशन में एक मिस्टेक है बेटा, उसको करेक्ट कर लेना। जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ हमारे पास आएगा N1 इंटू G1 बार माइनस G1 प्लस N2 इंटू G2 बार माइनस G2। यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है G2 माइनस G2 बार, इसकी जगह आएगा G2 बार माइनस G2। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, 6 और 7th इक्वेशन से वैल्यू निकाल रखी है G1 माइनस G1 बार और G2 माइनस G2 बार की, वो वैल्यूज़ उठाओ और अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा G मिक्सिंग की वैल्यू आ गई N1 RT ln A1 प्लस N2 RT ln A2। तो ये है हमारे पास फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी को बेसिकली हम सॉल्यूशन में जिस फॉर्म में लेकर के चलते हैं इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ दैट कंपोनेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट की एक्टिविटी है वहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पुट कर देंगे, और जहाँ पर हमारे पास सेकंड कंपोनेंट की एक्टिविटी आई हुई है वहाँ पर हम सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स X2 वहाँ पुट कर देंगे। तो रिजल्टिंग इक्वेशन जो हमारे पास आ गई वो हमारे पास आई है डेल्टा G मिक्सिंग इज इक्वल टू N1 RT ln X1 प्लस N2 RT ln X2। तो इसको समेशन के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा G मिक्सिंग इज इक्वल टू समेशन ओवर Ni RT ln AI प्लस, बस क्योंकि समेशन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो डेल्टा G मिक्सिंग विल बी इक्वल टू समेशन Ni RT ln AI और Ni समेशन Ni RT ln Xi। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो, अभी अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे दैट
for an ideal solution the volume change on mixing is equal to 0 and also the enthalpy change on mixing is also 0. तो यहाँ से हमें निकालनी है एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग. कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसको? उसके लिए अपनी यही वाली रिलेशन लो, डेल्टा जी मिक्सिंग वाली. हमें पता है डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू N1 RT ln x1 प्लस N2 RT ln x2. नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन विद t, यानी कि थ्रू आउट इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो t से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को भी और इसकी राइट हैंड साइड को भी. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया दैट इज डेल्टा जी मिक्सिंग बाय t इज इक्वल टू N1 R ln x1 प्लस N2 R ln x2. अब हम क्या करते हैं, अब जो ये हमारे पास टर्म है राइट हैंड साइड वाली, अगर इन टर्म्स को आप ध्यान से देखो तो हमारे पास किसी भी टर्म के अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है. तो अगर हम इस कंप्लीट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, द राइट हैंड साइड शुड बिकम 0, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वाली कोई टर्म नहीं है एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. दैट मीन्स ऑल द टर्म्स विल एक्ट एज कांस्टेंट्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 0. तो यहाँ से हमारे पास अब क्या आ गया, कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ डेल्टा जी मिक्सिंग बाय टी at constant pressure that will be equal to 0. अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन विच इज़ द मोस्ट बेसिक कॉमन इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़ी हुई है. तो उसके अकॉर्डिंग जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, अगर हम इसी टर्म की वैल्यू देखें तो दैट इज़ फाउंड टू बी माइनस डेल्टा एच by t square. Now we can equate these two equations. इक्वेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों के इक्वल हैं, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंगली उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए. तो हमारे पास यहाँ से आ गया डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या करेंगे, माइनस डेल्टा एच बाय एच मिक्सिंग बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सिंस -1 by t square is not equal to 0, because it cannot be equal to 0. So ideally 0 will be delta H mixing. So from here we calculated that this delta H mixing is 0 in case of an ideal solution. Next हमारे पास इससे पहले वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी था जो हम छोड़ गए गलती से. तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी बी को वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग के लिए. हमारे पास वही है फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग का हमने एक्सप्रेशन उठाया, दैट इज इक्वल टू N1 RT ln x1 प्लस N2 RT ln x2. इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे देखें तो कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है. दैट मीन्स ऑल द टर्म्स आर प्रेशर इंडिपेंडेंट. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा जी मिक्सिंग बाय डेल्टा पी ये निकाल लेंगे, यानी कि इस कंप्लीट इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो राइट हैंड साइड पे तो कोई भी प्रेशर डिपेंडेंट टर्म है नहीं, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ कंप्लीट राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0. बट थर्मोडायनेमिक्स हमें कहती है दैट कर्ल बाय कर्ल पी ऑफ डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी or simply delta V. Now from here we can see that delta V mixing is 0 for an ideal solution. So far we have discussed these three properties, three thermodynamic properties of the ideal solution. Now the last property is the entropy change on mixing, and for calculating the entropy we must know the relation that delta G is equal to delta H minus T delta S. And for the mixing process, it can be rewritten as
delta G mixing that is equal to delta H mixing and that is equal to T delta S mixing. तो अब यहाँ से हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, बिकॉज वी नो दैट डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और हमें इसी को कैलकुलेट करना है. सॉरी, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस मिक्सिंग. तो हम ये डेल्टा एच मिक्सिंग वाली वैल्यू अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो वहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग. That means from here delta S mixing is equal to minus delta G mixing by T. That means हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेल्टा G मिक्सिंग वाला एक्सप्रेशन है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और T से डिवाइड कर देंगे. तो अब अकॉर्डिंगली हमारे पास डेल्टा S मिक्सिंग के लिए एक्सप्रेशन आ गया -N1 RLN X1 प्लस माइनस N2 RLN X2. This is all about entropy of mixing for the ideal solutions. तो अब यहाँ पर शॉर्ट में आपको ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं that on the basis of the above studies it may be concluded that for the solution formed which is ideal, these conditions must be satisfied that delta V mixing should be 0, delta H mixing should be 0 and delta G mixing should be equal to x1 RT ln x1 plus n2 RT ln x2 and delta S mixing is equal to minus x1 R ln x1 minus x2 R ln x2. So this is all about today's lecture, that is the thermodynamic properties of ideal solutions and before that ideal and non-ideal solutions.